Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your civics and history teacher. And today we are going to do first chapter, power sharing. Yes, no doubt, 100 times we have done this topic, we have done this chapter, but today this is revision. Okay, so firstly I would like to give you some of the important questions to be written in copy. Then we will discuss one by one each question. Right? Show me thumbs up if this thing is clear to you, that whatever the topic we are going to do today. Show me thumbs up if this is clear. Okay, thank you, Anchal. Anchal, camera on. Thank you very much. Abhinandan, thumbs up. Chalo, thank you very much. Now open your copies. Write down today's date. 19 मार्च. मैं भी लिखती हूँ बोर्ड पे. बेटा म्यूट कर लिया करो खुद को फटाफट आते ही. ये तो फिर शोर रहता है. Yes, 19 March. The date is 19 March. Chapter beta power sharing. Question number 1. All the question you have to prepare for 5 marks. अब देखते जाना जिस क्वेश्चन में दिक्कत है मुझे अभी बता देना ताकि मैं आपको अभी क्लियर करवा दूं तो क्वेश्चन करना कैसे है. ठीक है. हाँ जी. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वीडियो ऑन. आंचल, कुलवीर, दिव्यांशी, चाहत, वीडियो ऑन. साहिल. Yes, thank you very much. If you want to enjoy the lesson, I want to see your face. मुझे आपके फेस दिखते रहे. Right. चलो. Question number 1. Ethnic composition of Belgium. Right. Very very important question for 5 marks. Describe ethnic. लिखते जाओ साथ साथ में. बाद में डिस्कस भी करवा दूंगी मैं. ठीक है. Ethnic composition of Belgium. Describe ethnic composition of Belgium. Beta 5 marks answer. Now when you will open your book, look at the screen. This is your book. ठीक है. civics की book है. जब आप ये book खोलोगे आपको first chapter you will see power sharing and on the very first page you will see power sharing or ethnic composition in Belgium. Right. And that will be the first answer. Okay. Right. So ethnic composition of Belgium. What is the meaning of ethnic? Ethnic means that kind of a group which is living together and sharing a common culture, language, or common, you can say common type of festivals or religion. That is called ethnic composition. जब आप ये बुक खोलोगे आपको फर्स्ट पेज पे, ये देखो बेटा, आपको फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन दिखेगा ethnic composition of Belgium. Above the map, this is map of Belgium, this is question. So first paragraph will be answer, but make sure that you will not write this paragraph के boring like वो पैसे का कहानी सा लगे. You have to explain this question with heading, but answer will be only first paragraph. हाँ, community comment डालना है तो डाल सकते हो आप Belgium में. Otherwise this is enough, right? So एथनिक कंपोजिशन मैं पढ़ाने नहीं वाली हूँ बिकॉज 100 टाइम्स वी हैव डन दिस. हाँ, एक आइडिया देती हूँ मैं आपको विच यू हैव टू अप्लाई वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. करना क्या है आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है बिकॉज इट इज रिटन बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, यूरोप स्मॉलर इन एरिया एज द स्टेट ऑफ हरियाणा. दिस विल बी इंट्रोडक्शन. और शेयरिंग बॉर्डर, जिस चीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड, लग्जमबर्ग. दीज 2 लाइंस विल बी इंट्रोडक्शन.
Then you will draw a pie graph. Okay, आपको याद होगा मैंने क्लास में भी आपको ऐसे वाला एक ग्राफ बनाया था. This is, suppose this is Belgium and you have to explain the shearing composition. कहाँ पर कितनी है right. Then कैमरा थोड़ा नीचे करो ताकि आपको पता लग जाए. Then this will be, अब आपको याद आ जाएगा 59% फ्लेमिश रीजन था. और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? आंचल. अनम्यूट योरसेल्फ. आंचल कैमरा ऑन. कामाक्षी अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, 59% फ्लेमिश एंड दे स्पीक व्हिच लैंग्वेज? Ma'am, Dutch. Dutch language. Okay, so these two things we will clear here. Then 1% German people. Then 40%. Mania, explain. Unmute yourself. Yes, ma'am. 40%. French people. French. Okay. Yes, ma'am. Wallonia region and French people. French speaking people. So this pie graph you have to draw for your better presentation. Then afterwards you will explain heading के काम पर क्या था, then explanation, then heading explanation. And if you will add community comment तो well and good. और थोड़ा सा ये बता देना कि community comment की वजह से ही बेल्जियम में इंडिया की तरह डिसेंट्रलाइजेशन है और सुविधा वहाँ पर नहीं है. बस ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया बेल्जियम. डोंट फॉरगेट टू ऐड ब्रुसेल्स हियर. आपने उसकी कैपिटल जरूर डालनी है बेल्जियम की. और वहां पर कंपोजिशन हाउ मच परसेंटेज यू हैव टू एक्सप्लेन 80-20 राइट. सो दिस विल बी द 5 mark answer. Need not to write again in copy, just I am giving you hints on. This is revision class. 100 times we have done Belgium. Now show me thumbs up if Belgium, ethnic composition of Belgium is clear to you. Okay, thank you very much. Thank you so much. Now second question. I am going to rub it. Shall I rub it? Chalo, ठीक है. Now second question. 5 marks. From same chapter. चाहत, आरुषि, नंदिनी, कैमरा ऑन. Describe the ethnic composition of Sri Lanka. Answer. No pie graphs for this question. इसके लिए pie graph नहीं है. Direct you will explain from book only. ठीक है. चाहत, साहिल, नंदिनी कैमरा ऑन. कुलवीर कैमरा ऑन. मैं अगर बिना कैमरा के बैठूं तो कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा ना? ऐसे ही मेरे को खराब लग रहा है. चाहत और साहिल मुझे बहुत खराब लग रहा है बेटा. मेरे पास एक ही तरीका है. It will take 1 minute only, not 1 minute, 10 seconds only. रिमूव कर दूंगी मैं. So Sri Lanka. Next paragraph. Next paragraph. Third paragraph. Let us compare this. But your answer will not start here from let us compare this. Your answer will start from second line Sri Lanka. I hope you got it. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu, and it is about 2 crore people, about the name as same as Haryana. This will be introduction. Mark kar. This will be introduction. Kamaljeet, video on. Chahat, Sahil, video on.
and then full paragraph is the answer of Sri Lanka, ethnic composition of Sri Lanka. But make sure you will not write this question or this answer in paragraph. You will write in points with the headings. खुद ही अपने आप suitable headings बना लेना, because many times I have given you the heading and explanation. पैसेज में कहानी की तरह क्वेश्चन नहीं लिखना आपने. ओके, so Sri Lanka has population, this you will explain. Okay, then Tamil native, Sri Lankan Tamil, Indian Tamil. हाँ, make sure that percentage का थोड़ा यहाँ पर confusing है. अब इसको जब आप percentage में use करोगे तो उसको 100 मत बनाना. अब ethnic composition whenever we have done about Belgium तो वो 100 हुआ था. Some of the students क्या करते हैं, इनको total करने बैठ जाते हैं 74, 18, then 7%, then 13%. मैम ये तो 100 से ज्यादा हो गया. इसको परसेंटेज में नहीं करना कि 100 हो जाए, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया एंड डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज पीपल बिलोंगिंग टू द सेम, बिलोंगिंग टू द डिफरेंट लैंग्वेज, दे आर लिविंग हियर इन श्रीलंका. ठीक है, अब क्वेश्चन को सम अप कैसे करोगे? क्वेश्चन को सम अप करने के लिए आपको जस्ट इसके एंड तक जाना है. नेक्स्ट पैराग्राफ, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका. मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका. मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका में सबसे पहले आप मेजॉरिटिज्म की एग्जांपल दे दोगे जब आप हेडिंग चेंज करने वाले हो. देखो मेरी बात सुनो, मेजॉरिटिज्म मींस वेयर वी गिव प्रेफरेंस टू मेजॉरिटी. जब हम मेजॉरिटी की बात सुनते हैं तो इसका मतलब मेजॉरिटिज्म, मिनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाता है. दिस वाज द बिग मिस्टेक डन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट. श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया और सबसे पहले उसने क्या किया, इग्नोर किया माइनॉरिटी ग्रुप को. एंड फाइनल रिजल्ट एट द एंड दैट वाज सिविल वॉर. 100 of people were killed and chaos, confusion, disorder in the country, Sri Lanka. तो ये सारा एक्सप्लेन करके 100 times you have done this, ये आपको आ जाएगा करना. ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया. देन नेक्स्ट पेज पे है इसका रिजल्ट. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसका रिजल्ट है कि आप ये सब हुआ और इसका रिजल्ट खराब हुआ और देन एंड में सिविल वॉर हुई. दैट्स ऑल. यहीं तक करोगे आप दिस पैराग्राफ ऑनली. लाइवलीहुड तक. कैन यू सी दिस पेज? यहाँ पर लिखा है ना लाइवलीहुड, अप टू हियर ओनली यू विल राइट. क्वेश्चन फिनिश. यू आर नॉट गोइंग टू राइट हियर. अभी लिखना नहीं है, सिर्फ मार्क कर लो बुक पे. कुछ आइडिया लेने हैं, आइडिया अपनी कॉपी पे नोट कर लो, हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन विद अ गुड प्रेजेंटेशन. नाउ शो मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू हरलीन. Thank you Anshul, Kulveer, Divyanshi, Kamakshi. Thank you Kamal, Akanksha, Ikrit, Dashan. बेटा कैमरास ऑन करके बैठो मेरे पास. समीर, थैंक यू बेटा. Now next question, accommodation in Belgium. This will be your third question. Please write. How Belgium government solve the issue. Again 5 marks answer. How Belgium government, कॉपी पे लिख लो, आंसर नहीं मैं लिखने को कह रही हूँ, but at least you have to write the question. How Belgium government solve the issue, और एक क्वेश्चन लिखो और करके. How Belgium government solve the issue. What is community government? What is community government? What is community government? Explain the concept of community government.
with context to Belgium. Explain the concept of community government with context to Belgium. थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, थर्ड टीयर कह लो इसको आप, विद द context of Belgium. बेटा अगेन 5 मार्क्स आंसर। क्वेश्चन लिख लो, आंसर चाहे ना लिखना, क्वेश्चन लिख लो क्योंकि आंसर आपको बुक से ही मिल जाएगा, बट प्लीज राइट क्वेश्चंस। बेटा कैमराज ऑन। Now open your book at page number 4. Answer page 4. Page number 4. Now here it is written beautiful points and this will be your answer. Okay. अच्छा ये देख लेना सेपरेट में ना, स्क्रीन पे देखो जरा, दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पर रेडीमेड आंसर दिया है, पॉइंट्स बने, आप कर सकते हो, बट ये जो है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कम्युनिटी गवर्नमेंट का। समटाइम व्हाट हैपेंड, दिस क्वेश्चन यूजुअली कम फॉर 3 मार्क्स ओनली, एक्सप्लेन द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये वाला कम्युनिटी गवर्नमेंट दिया ना, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में ये रखो कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट समझ लो जैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट ना, वैसे, ठीक है। जैसे वी आर हैविंग 3 tier ऑफ द गवर्नमेंट ना, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, इन द सेम सेंस दिस इज द 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी थी, बेल्जियम सरकार बड़ी इंटेलिजेंट थी, ये ना हो कि हम मिनोरिटी को इग्नोर कर दें, तो थोड़े बहुत ऐसे वाले लोग रहते हैं उनके लिए अलग से गवर्नमेंट है, और इसमें सारा करा हुआ कैसे थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट। हाँ एक चीज देखो, बाई चांस इन एग्जाम if this question only come for 5 marks, सिर्फ कम्युनिटी गवर्नमेंट ही पूछ लेते हैं बेल्जियम की, पहली बात तो ये है कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अगर 5 नंबर में आता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक्सप्लेन करके यू विल गिव द रेफरेंस ऑफ बेल्जियम, यही वाला सारा क्वेश्चन लिख देना, विच आई हैव रिटन ऑन द फिजिकल बोर्ड, यही वाला सारा क्वेश्चन आपको लिख देना है, बिकॉज 5 मार्क्स में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, इलेबोरेट आंसर चाहिए, तो दिस विल बी द राइट आंसर। करेक्ट बेटा? शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कॉपी पे नहीं लिखना, जस्ट आपको बताया है, रिवीजन है। थैंक यू कामाक्षी, आंचल, विक्रीत, कमल, हरलीन, दिव्यांशी, आकांक्षा, अभिनंदन। जैसे नहीं समझ आई, थम्स अप नहीं लिखा मुझे। उदय, उदय समझ आ गई है? थैंक यू समीर। उदय अनम्यूट कर बेटा, उदय अनम्यूट कर पहले खुद को। अनम्यूट योरसेल्फ उदय। अनम्यूट करो उदय। नहीं कर पा रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभिनंदन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम। बेटा क्वेश्चन क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है। नाउ उदय, उदय अनम्यूट योरसेल्फ। उदय अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, आप ही को दिक्कत आ रही है। हरलीन अनम्यूट योरसेल्फ।
Yes, ma'am. बेटा क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नाउ उदय तुझे प्रॉब्लम आ रही है, अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? बेटा नेक्स्ट पेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर नहीं लिखना, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर शेयरिंग के करवा रही हूँ वही लिखते जाओ। इस क्वेश्चन का भी बोल्डिंग फॉर्म आएगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, आंसर विल बी सेम। साहिल नोट करो पहले क्वेश्चन। Watching here and there, I don't know why important questions are going on. In the first chapter, 100 times we have done this revision, but still I am going to do this. हाँ जी, why power sharing is desirable? जो आपकी बुक पे लिखा है वही लिख रही हूँ मैं। पावर शेयरिंग अपनी मर्जी से है ना? Why power sharing is desirable? और एक और क्वेश्चन लिखो बेटा इसके लिए। Why is power sharing necessary in democracy? Why is power sharing is necessary in democracy? 3 मार्क्स में तो है ही है, इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, power sharing is the very spirit of democracy justified. Double comma, horse question. Power sharing is desirable. Power sharing is the very spirit of democracy. Power sharing is the very spirit of democracy. Justify this statement with suitable points. या फिर खाली यही लिख लो, justify this statement. These questions are important for 3 as well as for 5 marks. ठीक है? कैमरा ऑन, जैस्मिन, हजाब, साहिल, चाहत, कैमरा ऑन. Now 3 and 5 marks. Right? Now answer. The main thing you are going to write here, difference यानी कि answer, definition of power sharing. Then here you will write prudential reason, then moral reason. Okay, this will be the answer. Then moral reason. Okay, this will be your answer for 3 marks as well as 5 marks.
बेटा पेज नंबर 6 पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, प्रॉपरली करना है इसको हेडिंग बनाकर। You will get this answer from page 6. Done, beta? Now show me thumbs up if this is clear to you. Thank you very much. वैसे इस क्वेश्चन में रहती है कंफ्यूजन, बट आई एम हैप्पी इफ इट इज क्लियर टू यू। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। नाउ होल्ड बुक इन योर हैंड। अपनी अपनी बुक हाथ में पकड़ो, ये वाली। मेरे पास है बेटा पेज नंबर 8। very important question for 5 marks. Here it is written forms of power sharing. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर बच्चा चाहता है पेपर में आए। बट यू नो, आपको एक बात बताऊं मैं, व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, प्री बोर्ड था, ठीक है। प्री बोर्ड में सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम हाँ ये क्वेश्चन आ जाए। उदय सुन रहा है ना मेरी बात, ध्यान से सुनी। अच्छा मैम ये क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि सबको पता था ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है 5.5 नंबर में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड देन सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, ठीक है, बड़ा खुश हो कि क्वेश्चन आ गया पेपर में। हॉरिजॉन्टल तो बहुत अच्छा 3 पॉइंट बनाऊंगा, उसके सब पॉइंट्स बनाऊंगा, वर्टिकल के भी 3 सब पॉइंट्स बनाऊंगा, आराम से 5 हेडिंग 5 पॉइंट करूंगा। What mistake he did? He written by mistake हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल लिख दिया और वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल लिख दिया, और बड़ा अच्छा अंडरलाइन करके फ्लो चार्ट बना के आंसर लिखा उसने। अच्छा, व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट आंसर शीट्स आफ्टर 10 डेज, एग्जाम के बाद मैंने आंसर शीट्स दी, तो ही वाज कमिंग टू मी एंड सेइंग मैम ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे आता था, तो बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस ना, बट आपको पता है ना ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने क्लास में भी सुनाया था, तो I can't say anything, I can't do anything, because marks will be awarded whatever you have written. Marks will not be awarded whatever you know. अब आपको पता है इसके उसके तो ना मार्क्स मिलेंगे, तो उसको वो मार्क्स 5 में से सिर्फ 2 मिले क्योंकि बाकी 3 पॉइंट सही थे। सो समटाइम ना वी हैव टू बी वेरी कूल कि हॉरिजॉन्टल, जब मैंने हॉरिजॉन्टल की बात कर दी ना, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस और दिस, ये हॉरिजॉन्टल है। जब मैं वर्टिकल की बात करूंगी तो फिर वर्टिकल ऐसे हो जाएगा 1 2 3। ये 1 2 3 नहीं होगा हॉरिजॉन्टल, ये 1 2 3 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, whenever you are going to solve this question, मेरी बात हमेशा याद रखना, this is horizontal, इसमें कोई 1 2 3 नहीं, सारे 1 है, ठीक है, बट इसमें 1 2 3 होगा। सबसे ऊपर जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमारी होगी स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, फिर 10वां गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग and this is called horizontal power sharing. Legislature, executive and judiciary, none of the organ of the government is strongest organ than the others. हम ये ऐसा नहीं। हाँ हरलीन, थैंक यू वेरी मच हरलीन, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से लिखा, मुझे क्लास में भी दिखाया था। यस थैंक यू, तभी मैं कह रही हूँ कि दिस टाइम यू विल नॉट राइट आंसर, सिर्फ मुझे सुनो ध्यान से, क्वेश्चन करने कैसे हैं, प्रेजेंटेशन करनी कैसे है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा उसके बाद क्या था कि आप इस बुक पे आ जाओ, अपनी एनसीईआरटी बुक पे आ जाओ। अब हियर दे हैव ब्यूटीफुली रिटन, बेटा इसकी इंट्रोडक्शन पहले डाल देना, ठीक है, साथ में पैराग्राफ दिया, फुल द फर्स्ट पैराग्राफ, फुल पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, जस्ट टेक एनी 3 लाइंस फॉर योर इंट्रोडक्शन, देन स्टार्ट हियर। ये बोल्ड में लिखा ना, पावर शेयरिंग, क्या लिखा, पावर इज शेयर्ड अमंग द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल, क्योंकि लेवल ही होते हैं 1 2 3, ऑर्गन तो नहीं होते 1 2 3। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह सकती कि मेरी बॉडी में लंग्स इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बैकबोन इंपॉर्टेंट नहीं, लीवर इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्गन सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे इक्वल है।
बट लेवल 1, लेवल 2 गेम खेलते हैं तो लेवल में आ जाते हैं ना, whenever we clear up one level and we go up to the higher level. So level होता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल. Okay, then third, power sharing among social groups. अपने अपने social groups बने हैं सोसाइटी के, they put pressure on the government to fulfill their policies and their demand. Then political part, जहाँ पर देखो लिखा political parties, pressure groups और movement. 3 things, आप इसको अलग अलग करके लिख दोगे, प्रेशर ग्रुप्स अलग लिख दोगे और पॉलिटिकल पार्टीज अलग लिख दोगे. पॉलिटिकल पार्टी भी पावर शेयर करती हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शन है, जिनके पास दम है ना, दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इन पार्टीज. तो प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. ब्यूटीफुल इसलिए कि इसमें यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट राइटिंग. ठीक है, जिसमें मटेरियल ही नहीं मिलता कुछ लिखने का तो दिक्कत उसमें आती है. हाँ, 5 मार्क्स में इसको कैसे इलेबरेट करें, बट दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, राइट. चलो, नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू हरलीन, कामाक्षी, उदय, कमल, आंचल, दिव्यांशी, साहिल थम्स अप नहीं दिखा, इकरीत, समीर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चाहत, साहिल, हजाब, जैस्मिन. चलो ठीक है बेटा. नाउ एनी डाउट, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आकांक्षा को. No, ma'am. ओके, थैंक यू बेटा. आंचल, अनम्यूट करो. एनी डाउट बेटा? No, ma'am. चलो ठीक है बेटा. कमल, अनम्यूट करो. No, ma'am, no doubt. ठीक है, थैंक यू बेटा. आरुषि, आरुषि, Clear, clear, ma'am. ओके बेटा, ओके. कामाक्षी, No doubt, ma'am, all clear. ओके. इकरीत, Ma'am, clear. ठीक है बेटा. उदय, ठीक है बेटा. अच्छा, एक चीज देखो, अभी भी अगर मैं आपका टेस्ट लूँ ना, सरप्राइज टेस्ट लूँ मैं, फिर भी सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट 4.5. सबको 5 नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन का तरीका जिनको समझ आया, दोज विल गेट 5 out of 5, बिकॉज आई वॉन्ट इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, एक्सप्लेनेशन, हो सके तो कंक्लूजन भी. ठीक है, सीधी कहानी जैसे 1 2 3 4 छोटी छोटी 5 लाइनें बना के लिखा होगे तो यू विल गेट 3 out of 5. So presentation must be in a good way. Thank you very much. I am going to end up the class. Thank you, beta. God bless you.